سائیں دے کمی جو ہے گال کم دی کروں، جو کرنا ہے اساں سوچ ساری کروں۔ نوا کلام تھوڑے کیتے لکھا ہویا تھا بہت پرانا، تقریباً 2003 دا لکھا ہویا ہے۔ شاید ہی اس دھرتی دے وچ میں ہی پڑھا ہے کلام، میں تو پہلے کہہ نہیں پڑھا۔ سائیں دے کمی جو ہے گال کم دی کروں، جو کرنا ہے اساں سوچ ساری کروں۔ جشن دی رات ہے خاص خیرات ہے، نہیں مناسب جو آج نیندر پیاری کروں۔ جہندے صدقے سخن وار صدیندے ودوں، اندے احسان دی پاسداری کروں۔ جتنی مخلوق موجود ہے جشن وچ، بھول کے بھی نہ کہیں دی دل آزاری کروں۔ سرخ رو تھی کرائیں خوب رو تھی کرائیں، باوضو تھی کرائیں جل تیاری کروں۔ کون خوشحال ہے کون بے حال ہے، آذرا رل کے مردم شماری کروں۔ پاک محفل کسوٹی ہے کردار دی، کھوٹ کھوٹا کروں کھرا کھرا کروں۔ دوں مبارک حلالی موالی کو آج ہر منافق تے خادم تبرہ کروں۔ نعرہ حیدری۔ زینت ممبر سارے مہمان شہر آل محمد جناب ذاکر احمد سجاد ہنڈوی بہاول پور، انہوں نے بعد قاری القصید مداح اہل بیت جناب ذاکر ادیب رضا جھنڈوی بہاول پور، انہوں نے بعد ملک پاکستان دی نامور شخصیت قاری القصید شہر آل محمد مخدوم سید شفقت محسن کاظمی بابا سے بلند صلوات۔ درود پڑھ دیں مل کے بلند آواز سے۔ ٹھیک۔ چھٹے بادشاہ ولایت کے فرماتے ہیں کہ جو بندہ ہماری ذات پہ کھلے دل سے درود بھیجے، ساری زندگی اس بندے کے رزق میں کمی آ ہی نہیں سکتی۔ درود مل کے بلند آواز سے پڑھیں۔ اور میرے بادشاہ کا فرمان ہے، ارفعوا اصواتکم علینا بالصلاۃ طہارۃ و تزکیۃ لانفسکم۔ مولا فرماتے ہیں ہماری ذات پہ بلند آواز سے صلوات اس لیے پڑھا کرو تاکہ تمہاری خلقت سے نجاست جاتی رہے، پاکیزگی آتی رہے۔ تو پھر کوشش کر کے سارے اللہم صلی علی محمد اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَبِهِ نَسْتَعِينُ وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین، ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا قاہر العدو یا والی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی، صلوات مل کے بلند آواز۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان جشن کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی عزادار خالی دامن نہ جائے۔ میرے مالک جتنے ہاتھ دعا کے لیے بلند ہیں، بادشاہ عباس کے ہاتھوں کا واسطہ انہیں اسی سال کربلا کی ذریعوں کے ساتھ مسونے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک جتنے ہاتھ بلند ہیں، سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی بھی ہاتھ آج اس پاک ذکر سے اس دربار سے خالی نہ جائے۔ جتنے بیمار ہیں صدقہ بیمار کربلا کی بیماری کا مولا انہیں شفا یاب فرمائے۔ اس نازک دور میں ہر ماں بہن بیٹی کا مولا پردہ سلامت رکھیں۔ بندہ ہوئے شیعہ اس دعا تے آمین نہ کہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس دور کی دعا منگوا رہا ہوں، آمین سارے کہنا اور ثواب میں شریک ہو جانا۔ میرے مالک ہم گنہگاروں کو ہمارے آخری وارث، آخری حجت، آخری محمد کی جلد زیارت نصیب فرما۔ بادشاہ حسین کا جو بندہ اپنے آپ کو جتنا مکروہ سمجھتا ہے، کوشش کر کے صلوات اتنی بلند آواز سے پڑھیں۔
واہ واہ واہ، کیا بات! واہ واہ، کیا بات! جی سلامت رہیں، اجازت ہے نوکری کا آغاز کیا جائے؟ آپ سب کی اجازت ہے نوکری کا آغاز کیا جائے؟ سدا سکھی رہیں، سدا سلامت رہیں، سدا آباد رہیں۔ غم مظلوم کے سوا مولا آپ کو دنیا کا کوئی غم نہ دکھائیں۔ ذاکری دعویٰ نہیں، شاعر گھرانے کا ایک چشم چراغ ہوں۔ شاعری سے بڑا پیار ہے۔ جیسے میرے پاپا جان اجاز حسین جھنڈوی جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، ان کی گود کا اثر دیکھنا ہے میرے بھائیوں، میری محنت دیکھنی ہے۔ لوگوں کے بچے کھلونوں سے کھیلتے ہیں، ہم لفظوں سے کھیلتے ہیں۔ ان کی گود کا اثر دیکھنا ہے، میری محنت دیکھنی ہے۔ ان کا ہی دیا ہوا سبق آپ کو سنا کے آپ سے دعا حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ بھی تھوڑی تھوڑی کوشش کرنا، میرے ساتھ بولنا۔ آپ جتنے بیٹھے ہو سوالات کی حیثیت سے بیٹھے ہو۔ بندے زیادہ ہوں اتنی کم ہوتے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے شہید محسن نقوی صاحب کیسے کیسے لوگ گزر گئے اور کیسے کیسے لفظ اگلی نسلوں کے لیے چھوڑ کے چلے گئے۔ وہ فرماتے تھے بندے جتنے زیادہ ہوں اتنے کم ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ جن بادشاہوں کو ہم نے مانا ہے نا، ان کے یہاں ماحول ہی کچھ ایسا ہے، کبھی کبھی 72-9 لاکھ پہ بھاری پڑ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ جو ہاتھ ابھی سے بلند ہو گئے ان کا میں شکر کرتا ہوں۔ بسم اللہ۔ مدر زیدی صاحب میرے بہت پیارے بھائی تشریف فرما ہے، ان کی آمد واہ واہ واہ، صلوات پڑھ دیں مل کے بلند آواز سے۔ ذاکری دعویٰ لے کر ممبر پر نہیں آیا، آپ سب کی دعاؤں سے ممبر پہ کھڑا ہوں اور آپ کو کچھ سنانے کا شرف حاصل رکھتا ہوں۔ بس ذاکروں کی فہرست میں چھوٹا سا نام میرا بھی بالکل اس طریقے سے آ جائے جیسے بازار مصر میں حضرت یوسف کے خریداروں میں کسی ضعیفہ نے اپنا نام لکھوایا تھا۔ کیا کہنے آپ، اتنا خوبصورت جشن سجا دیا بانیان نے، تو میں ایک دعا کرنے لگا ہوں۔ پہلی بات آپ سے نہیں، پہلی بات میں اپنے زمانے کے امام سے کرنے لگا ہوں۔ مولا وہ آپ جب آئیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے بھائی جان، مولا آپ جب تشریف لائیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن آپ کے موالی ہیں، آپ کے ملنگ ہے، اتنا خوبصورت دربار سجا کے بیٹھے ہیں۔ پھر آج کی رات میری ایک دعا ہے، میرے مولا میرے الفاظ کی توقیر بڑھانے آ جا۔ تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولتے ہیں نا، تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولتے ہیں نا، میرے الفاظ کی توقیر بڑھانے آ جا، میرے الفاظ کی توقیر بڑھانے آ جا، میرے الفاظ کی توقیر بڑھانے آ جا، ہم ملنگوں کے مقدر کو جگانے آ جا۔ وہ تیری مرضی ہے کہ کب پردہ ہٹائے، لیکن آج کی رات میرا جشن سجانے آ جا۔ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ علی اعلیٰ ہاتھ اونچے کر کے بولے حیدری، سلامت رہیں، آباد رہیں۔ وہ تیری مرضی ہے کہ کب پردہ ہٹائے، لیکن آج کی رات میرا جشن سجانے آ جا، آج کی رات میرا جشن سجانے آ جا۔ 4 مصرے اور پڑھوں اگر آپ کی اجازت ہے تو۔ نازل ہوئے حسین تو کہنے لگے رسول۔ نازل ہوئے، جشن میں بندہ نہیں بولتا، جشن میں عقیدہ بولتا ہے۔ جس کے عقیدے میں علی ہے وہ بندہ ہاتھ اٹھا کے علی بادشاہ کو سلام لازمی کرے۔ میں کہہ رہا ہوں نازل ہوئے حسین تو کہنے لگے رسول، کیا آنا من الحسین کا سامان آ گیا۔ نازل ہوئے حسین تو کہنے لگے رسول، آنا من الحسین کا سامان آ گیا، آنا من الحسین کا سامان آ گیا۔ دو ہی گلہ نہیں ہے، بندہ گونگا ہے، یہ بندہ گھروں قرآن تے ہاتھ رکھ کے آ گیا، کسی ذات کر کے بولنا کو نہیں، سر اٹھانا، میری بات کا وزن کرنا۔ میں کہہ رہا ہوں نازل ہوئے حسین تو کہنے لگے رسول، آنا من الحسین کا سامان آ گیا۔ عباس کے نزول پہ قرار نے کہا، لو وقت کے رسول کا عمران آ گیا۔ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ اللہ یہ ہاتھ کسی کمینے کے محتاج نہ ہو، جڑے بول سکتے ہو ہاتھ اونچے کر کے بولو حیدری۔ سلامت رہیں، سدا آباد رہیں۔ عباس کے نزول پہ قرار نے کہا، لو وقت کے رسول کا عمران آ گیا، لو وقت کے رسول کا عمران آ گیا، لو وقت کے رسول کا کفیل بھائی عمران آ گیا۔ عباس جب اس دنیا میں آئے نا 4 شعبان کو، علی کے ہاتھوں پہ عباس تھے۔ علی نے چاہا کہ میں عباس کے چہرے سے نقاب ہٹاؤں۔ اسد بھائی، علی نے چاہا کہ عباس کے چہرے سے نقاب کو ہٹایا جائے۔ ادیب بھائی خصوص توجہ کریں گے۔ علی نے چاہا کہ میں عباس کے چہرے سے نقاب ہٹاؤں،
अली ने नकाब हटाया, नीचे से अब्बास का फूल जैसा चेहरा सामने आया। या आवाज़े खाली कही आली, चंद चेहरे तो पर्दा हटाया जो हई, अरिश्ता ईद चमकन दी डास आ गई है। चंद चेहरे तो पर्दा हटाया जो है, दांत दो ना दो बात का लुत्फ लाजमी रहना। चंद चेहरे तो पर्दा हटाया जो है, आप मेरी तरफ देखे, चंद चेहरे तो पर्दा हटाया जो है, अरिश्ता ईद चमकन दी डास आ गई है। मैं भी सोहने ते सोना बने दारियां, तेरा गाजी बनावन दी चास आ गई। अल्लाह अकबर। जो मुश्किल बातों के खरीदार बैठे हो, थोड़ा थोड़ा मेरे साथ बोलो, क्या कहने हैं आपके, मैं आपको वाह कर रहा हूँ। ऐसे मजमे को मेरी वाह जो मुश्किल बातों में बोलते हैं। मैं भी सोहने ते सोना बने दारियां, तेरा गाजी बनावण दी चास आ गई है, तेरा गाजी बनावण दी चास आ गई है। कौन है मेरा मुर्शद अब्बास? क्या है अब्बास की फजीलत? हशर तक ऊंचा रहेगा बावफा का ये अलम, हशर तक ऊंचा रहेगा। जो गाजी का मरीद बैठे हो, थोड़ा थोड़ा मेरे साथ बोलना। हशर तक ऊंचा रहेगा बावफा का ये अलम, हशर तक ऊंचा रहेगा बावफा का ये अलम। जो हाथ रोज गाजी के परचम की सलामी करते हैं वो बुलंद होने चाहिए। हशर तक ऊंचा रहेगा बावफा का ये अलम। तुमने सोचा है कभी ये फैसला क्यों हो गया? उसकी फितरत में ही झुकने का तस्वर जो न था। शेर का पंजा कटा यूं ना हुआ, यूं हो गया। अल्लाह अकबर। हैदरी, शेर का पंजा कटा यूं ना हुआ, यूं हो गया, यूं ना हुआ, यूं हो गया। और एक परचम है जो ऊंचा है कई सदियों से, एक परचम है जो ऊंचा है कई सदियों से। मिंबर के गिलाफ में हाथ डाल के हर हलाल जादे को विलायत अली की कसम दे के कह रहा हूं, चौथे मिसरे पे हक बन जाए गाजी का वास्ता मेरा हक रखना नहीं, हक न बने हुसैन का वास्ता बोलना नहीं। एक परचम है जो ऊंचा है कई सदियों से, उसका इनकार करोगे तो किधर जाओगे? अब भी अब्बास के पंजे से आती है सदा, हम मगर हाथ हटा लेंगे तो मर जाओगे। अल्लाह अकबर। क्या कहने आपको मेरा सलाम। हैदरी, सलामत रहे, आबाद रहे। जो हाथ बुलंद हो गए आज के दिन गाजी से खैरात ले रहे हैं, उसका इनकार करोगे तो किधर जाओगे? बुजुर्गों, अब भी अब्बास के पंजे से ये आती है सदा, हम मगर हाथ हटा लेंगे तो मर जाओगे, हम मगर हाथ हटा लेंगे तो मर जाओगे, हम मगर हाथ हटा लेंगे। इतना मेरा आपने हौसला बढ़ाया है तो मैं एक जुमला आपके हवाले करता हूँ। अल्लाह या रसूल अल्लाह, अली आपने हौसला बढ़ा दिया तो एक मुश्किल बात आपके हवाले करूं। कीमत देंगे ना, कीमत मुझे तोल के चाहिए, एक रत्ती बराबर भी कम नहीं होनी चाहिए। मिंबर पे कह रहा हूं, झुक गई इसलिए लकड़ी पे जबीने फुतरस। थोड़ा थोड़ा मेरे साथ बोलना। जो दीवार के साथ टेक लगा के बैठे हैं, थोड़ा थोड़ा हाथ उठा लो। झुक गई इसलिए लकड़ी पे जबीने फुतरस, उसको मालूम था लकड़ी में वली रहता है। अल्लाह अकबर। सलाम ऐसे हाथों को जिक्र हुसैन में बुलंद होते। झुक गई इसलिए लकड़ी पे जबीने फुतरस, उसको मालूम था दी भाई लकड़ी में वली रहता है, उसको मालूम था लकड़ी में वली रहता है। और मातमी सीने से बीमार को मिलती है शिफा, क्यों? दिल के झूले में हुसैन इब्ने अली रहता है। क्या कहने, सलामत रहे। उसको मालूम था लकड़ी में वली रहता है, मातमी सीने से बीमार को मिलती है शिफा, दिल के झूले में हुसैन इब्ने अली रहता है। दिल के झूले में करीमी बताने लगा हुसैन बादशाह की। सारी इस बात को जानते हैं, नया नहीं, 6500 साल का पुराना सजा याफ्ता था फुतरस। और वजह क्या थी? इतना खूबसूरत मजमा मुझे मिल गया तो मैं एक बात आपके हवाले करता हूँ। 6500 साल, और वो हमारे साल नहीं थे, नौरानी साल थे। 6500 साल का पुराना सजा याफ्ता था फुतरस। और वजह क्या थी? गरूर बहुत करता था, घमंड करता था, मम्मिसली का दावा करता था। मिंबर पे खड़ा हुआ, रख मेरे सर पे कुरान। उस जात को गरूर पसंद नहीं, अल्लाह ने बिजली गिराई, सारे बाल उड़ गए, पर उड़ गए। गोश्त का एक लोथड़ा बन के फुतरस फरिश्ता जमीन पे पड़ा था। और जिस वक्त आदम को सजदा हो रहा था, इसने माजूरी की हालत में आदम को सजदा तो किया था, पर आदम से मदद नहीं मांगी थी। आदम को सजदा कर लिया, पर आदम से मदद नहीं मांगी। आदम को सजदा कर लिया जी, पर आदम से मदद नहीं मांगी। आदम को सजदा कर लिया, आदम से मदद नहीं मांगी। 3 शबान 4 हिजरी अल्लाह ने जिब्राइल को हुक्म दिया, जिब्राइल 10,000 फरिश्तों के कबीले ले।
10,000 फरिश्ते नहीं, 10,000 फरिश्तों के कबीले। एक कबीले में होते हैं 10 लाख फरिश्ते। अब खुद अंदाजा लगाओ 10,000 फरिश्तों के कबीले। अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल 10,000 फरिश्तों के कबीले ले जमीन पे जा। 10,000 फरिश्तों के कबीले लेके जिब्राइल आज जमीन पे जा और जमीन पे मोहम्मद को हुसैन के आने की मुबारकबाद दे। क्या बात है, या अली अलैहिस्सलाम, जमीन पे जा, 10,000 फरिश्तों के कबीले ले, जमीन पे जा, मोहम्मद को हुसैन के आने की मुबारकबाद दे। अब वो मेरी जात है मुसब्बिबुल अस्बाब, बुजुर्गों से सबब बनाने आते हैं। अब कुदरत का इत्तफाक कुछ यूं हुआ भाईजान, जहां वो गोश्त का लोथड़ा पड़ा हुआ था फुतरुस, वहीं जिब्राइल 10,000 फरिश्तों के कबीले लेके उतरा। इसने देखा ये डर गया, अपने जले हुए पर समेटे, फरिश्ते पे फरिश्ता, 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 नौरानी फरिश्ते उतरे। माजरा क्या है, फरिश्ते पे फरिश्ता, फरिश्ते पे फरिश्ता, फरिश्ते पे फरिश्ता, फरिश्ते पे फरिश्ता। भाईजान 10,000 फरिश्तों के कबीले उतरने के बाद आखिर में जिब्राइल आया। इसने पहचान लिया ये तो मेरा शनासा है, इसे तो मैं जानता हूं, ये तो जिब्राइल है। इसने कहा भाई जिब्राइल, मैं फुतरुस हूं, तेरा पुराना मोहल्लेदार। भाई जिब्रील माजरा क्या है, फरिश्ते पे फरिश्ता उतर रहा है, फरिश्ते पे फरिश्ता उतर रहा है, फरिश्ते पे फरिश्ता उतर रहे, इतने फरिश्ते उतर रहे हैं भाई जिब्रील, आसमान खाली है, कहीं कयामत तो नहीं आ गई? जिब्राइल मुस्कुरा के कहता है फुतरुस परेशान ना हो, कयामत नहीं आई, कयामत का मालिक आ गया। क्या बात है, क्या बात है, आप जी या अली, कयामत नहीं आई, कयामत का मालिक आ गया। मेरे से बेहतर पढ़ते हैं मेरे बड़े भाई हैं, इनको मैंने मेंबर देना है। कयामत नहीं आई, कयामत का मालिक आ गया, कयामत नहीं आई, कयामत का मालिक आ गया। इसने हाथ मान के कहा भाई जिब्रील जा का रहे हो, जा का रहे हो, जा का रहे हो? बिस्मिल्लाह, किबला की आमद पर बुलंद सलवात पढ़ दे। आली मर्तबा इज्जत में अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली। चले अब वहीं पे आ जाए जहां पे पहले थे। इसने कहा भाई जिब्रील कहां जा रहे हो, भाई जिब्रील कहां जा रहे हो, भाई जिब्रील जा कर रहे हो? चाचू कार तवज्जो करेंगे, भाई जिब्रील जा कर रहे हो, जा कहां रहे हो, जा कहां रहे हो? इसने कहा नीचे सैयदा की आगोश में, सरजमीन पे, आज 3 शबान है, खुश अल्लाह का जहान है, नीचे सरजमीन पर सैयदा की आगोश में कुरान उतरा है, सारे फरिश्ते उसकी तिलावत के लिए जा रहे हैं। सब तिलावत, थोड़ा थोड़ा मेरे साथ बोलना, मेरा हौसला बुलंद किया तो सुनते रहना। नीचे सैयदा की आगोश में कुरान उतरा है, तिलावत के लिए जा रहे हैं, सैयदा की आगोश में कुरान उतरा है, तिलावत के लिए जा रहे हैं। इसने हाथ मान के कहा भाई जिब्रील एक अर्ज है, एक गुजारिश है, घर मुझे साथ लेते चलो, शुक्रिया, नूर खालिक के मजहर भी मिल जाएंगे, मैं खताकार आसी पशेमान हूं, शाफिए रोज़े महशर भी मिल जाएंगे। क्या बात है, हैदरी। इसने हाथ मार के कहा भाई जिब्रील कर मुझे साथ लेते चलो, शुक्रिया, नूर खालिक के मजहर भी मिल जाएंगे, मैं खताकार आसी पशेमान हूं, शाफिए रोज़े महशर भी मिल जाएंगे, शाफिए रोज़े महशर भी मिल जाएंगे, शाफिए रोज़े महशर भी मिल जाएंगे। खलाली भी चुप रह गया, दुख कयामत तक लगेगा। जिब्राइल से फुतरुस कह रहे भाई जिब्राइल कर मुझे साथ लेते चलो, शुक्रिया, नूर खालिक के मजहर भी मिल जाएंगे, मैं खताकार आसी पशेमान हूं, शाफिए रोज़े महशर भी मिल जाएंगे। इल्म के शहर की भी ज़ियारत करूं और वहीं इल्म के दर भी मिल जाएंगे, जिनके सदके में आदम को माफी मिली, उनके सदके मुझे पर भी मिल जाएंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह, जिनके सदके में आदम को माफी मिली, उनके सदके मुझे पर भी मिल जाएंगे, उनके सदके मुझे पर भी मिल जाएंगे। सारे इस बात को जानते हैं। ज़हीन मजमू मेरे सामने तशरीफ फरमाए, आपके बच्चों को भी ये वाक़या याद है कि जिब्राइल ने फुतरुस को अपने परों पे बिठा लिया। अब शेख सदूक अपनी किताब में इस बात को तहरीर करते हैं। शेख सदूक इस लकीर को खींचते हैं कि जिब्राइल ये भी तो कह सकता था ना बाबा ना, तो अल्लाह के गजब का शिकार है, ये ना हो तुझे अपने परों पे बिठा लूं, अल्लाह मुझ पर भी अजाब नाजिल ना करे। लेकिन जिब्राइल को इस बात का यकीन था, जिसे हुसैन पनाह में ले ले उसे अल्लाह ना नहीं करता। क्या कहने, जो हाथ बुलंद हो गए इनको मेरा सलाम है। जिसे हुसैन पनाह में ले ले उसे अल्लाह ना नहीं करता। थोड़ा थोड़ा आप मेरे साथ बोलेंगे, जिसे हुसैन पनाह में ले ले उसे अल्लाह ना नहीं करता, उसे अल्लाह ना नहीं करता। परों पे बिठाया, ले आया रसूल की बारगाह में, रसूल के सामने उस गोश्त के लोथड़े को रखा, बाल नहीं थे, पर नहीं थे, गोश्त का एक लोथड़ा था। फुतरुस को रसूल के सामने रखा, रसूल ने फुतरुस को देखा, रसूल ने पूछा जिब्राइल ये क्या है?
जिब्राइल ने हाथ मांग के कहा, सरदार इतनी देर हो गई आपके घराने की नौकरी करते हुए, आपके बच्चों का खादिम हुआ, आपका खादिम हुआ, आज इस सारी नौकरी का एक सिला मांगता हूँ, इस फकीर को शिफा दे दे। ये आपका फकीर है, आपके दरवाजे पे आया है, माजूर है, इसको शिफा दे दे, इसका नाम है फुतरुस, इसे शिफा दे दे। अब बाहर ये बात ये हो रही थी, पर्दे से बीबी सैयदा की आवाज आई, बाबा आपकी शिफा देंगे, बाबा आज 3 शबान है, खुशल्ला का जहान है, मेरा हुसैन मेरी झोली में है, आज इस मरीज को शिफा में सैयदा दूंगी, आज इसे खैरात में सैयदा दूंगी। बीबी की बात मुकम्मल हुई थी, आउट से हसन आगे बढ़े, मुस्कुरा के कहते हैं अम्मा आपकी शिफा देंगी, अम्मा आज 3 शबान है, मेरा भाई हुसैन इस दुनिया में आया है, मुझसे छोटा है, आज इसके मरीज को शिफा मैं दूंगा, आज इसके पहले सवाली को भीख में खैरात मैं दूंगा, आज इसे भीख मैं दूंगा, आज इसे भीख मैं दूंगा, आज इसे खैरात मैं दूंगा। हसन की बात मुकम्मल हुई, अली आगे बढ़े, मुस्कुरा के कहते हैं हसन अगर ये बात है तो चुप हो जाओ, अगर ये बात है तो हसन खामोश हो जाओ, मेरा नाम अली है, कायनात की मुश्किलें कुशा करता हूँ, कायनात की मुश्किलें आसान करता हूँ, मेरे बेटे का पहला सवाल ही आ गया, आज इसे शिफा मैं अली दूंगा, आज इसे खैरात मैं अली दूंगा, आज इसे शिफा मैं अली दूंगा। यह सबकी बातें मुकम्मल हुई, सैयदा कह रही थी शिफा मैं दूंगी, हसन फरमा रहे थे शिफा मैं दूंगा, अली फरमा रहे थे शिफा मैं दूंगा, सैयदा फरमा रही थी शिफा मैं दूंगी, अली फरमा रहे थे खैरात मैं दूंगा, हसन फरमा रहे थे खैरात मैं दूंगा। यह सबकी बातें मुकम्मल हुई, मोहम्मद आगे बढ़ के मुस्कुरा के कहते हैं अगर ये बात है तो सारे खामोश हो जाओ, क्योंकि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह सुब्हान अल्लाह। क्या कहने, क्या कहने, हुसैन मुझसे है, हैदरी हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से। अब शेख सदूक इस बात को तहरीर फरमाते हैं, जब नन्हे हुसैन ने ये बात सुनी ना रसूल की कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं, नन्हे हुसैन ने माँ की आगोश में करवट बदली, नन्हे ने हाथ बांध के कहते हैं नाना जान नाराज ना होइएगा, महसूस ना फरमाइएगा, अगर इसने शिफा आपसे लेनी होती ये रबीउल अव्वल में आता, अगर इसने जो मुश्किल बातों में बोलते हो थोड़ा सा मेरे साथ बोलो, अगर इसने खैरात आपसे लेनी होती है रबीउल अव्वल में आता, अम्मा नाराज नहीं होना अगर इसने शिफा आपसे लेनी होती है जमादी सानी में आता, भैया हसन नाराज नहीं होना अगर इसने खैरात भीख आपसे लेनी होती है 15 रमजान को आता, बाबा अली नाराज नहीं होना अगर इसने खैरात भीख आपसे लेनी होती है 13 रजब को काबे में आता। ये आया है 3 शबान को और खैरात लेने आया है मुझे हुसैन से, इसे खैरात देना मेरा बनता है, इसे शिफा देना मेरा बनता है, लेकिन फैसला मैं हुसैन नहीं करूंगा, फैसला जो मेरे नाना करेंगे, फैसला जो मेरे नाना करेंगे, फैसला जो मेरे नाना करेंगे। जब मोहम्मद ने ये बातें सुनी कि फैसला मैं करूंगा, मोहम्मद ने कहा जिब्राइल जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर, फुतरुस फरिश्ते को उठा के जाके इसे हुसैन के साथ नहीं हुसैन के झूले की लकड़ी से मस कर। अल्लाह अकबर, क्या कहने, क्या कहने, हुसैन के साथ नहीं हुसैन के झूले की लकड़ी से। मेरी सोच से ज्यादा बोले हैं, मुझे यकीन हो गया अब जाकिर को नहीं आप जिक्र को सुनते हैं। हुसैन के साथ नहीं हुसैन के झूले की लकड़ी से मस कर, लकड़ी से मस हुआ, बाल भी आगे पर भी आ गए, और मुझे इज्जत हुसैन की कसम है झूठ बोलूं मुझे मौला यहीं पे गर्क कर दे, इज्जत हुसैन की कसम है जिस झूले से पर मस करके फुतरुस को शिफा मिली थी अभी हुसैन उस झूले में सोया ही नहीं था। क्या बात है, क्या बात है, आप सलामत रहे, जो मुश्किल बात में बोले मैं आपको सलाम करता हूँ। जिस झूले से पर मस करके फुतरुस फरिश्ते को शिफा मिली थी अभी हुसैन उस झूले में बाबा जी सोया ही नहीं था, अभी हुसैन उस झूले में सोया ही नहीं था। मैंने सवाल किया या बादशाह रसूल खुदा, मैं आपका, आपके घराने का, आपके बच्चों का, कायनाते आलम में सबसे छोटा गदागर, मौला जो बेचारा 6500 साल का सफर करके सिर्फ हुसैन के झूले तक आ गया, उसे हुसैन तक पहुंचने में कितनी देर लगती है? बादशाह कम अज कम हुसैन के साथ तो मस करें। इतना लंबा सफर करके आया आपने हुसैन के साथ नहीं, हुसैन के झूले की लकड़ी से मस कर दिया। बादशाह कम अज कम हुसैन के पांव के तलवों के साथ तो मस करे। रसूल मुस्कुरा के फरमाते हैं मेरा जाकिर तूने इंसाफ नहीं किया, ऐ मसीहा झड़वी यहाँ पहचान थोड़ा सा इंसाफ कर, यहाँ पहचान थोड़ा सा इंसाफ कर, झूले के साथ इसलिए मस किए, यहाँ पहचान थोड़ा सा इंसाफ कर। पर फरिश्ते को मिले पर नहीं समझा तूने, पर फरिश्ते को मिले पर नहीं समझा तूने। एक हलाली चुप रह गया, नहीं आया वो जवान जश्न में। पर फरिश्ते को मिले पर नहीं समझा तूने, पर फरिश्ते को मिले पर नहीं समझा तूने। सीरत सरवरे आलम से सदा मिलती है, ताजियादारी को मत शिर्क समझना लोगो, हमसे मंसूब हो लकड़ी तो शिफा मिलती है। तुझे सखी सरदार